Okay. Now, today we are going to a new chapter. We are going to start a new chapter that is called digital transmission. नाम से ही पता चल रहा है what is the meaning of digital transmission. That means digital to digital conversion we will discuss. Please mute yourself. अगर कोई British, please mute yourself. Okay. So, digital to digital transmission actually we are going to discuss here. So, first topic digital transmission का मतलब समझो. Digitally, we have to transmit the data to signal and signal to data. Digitally, we have to transmit data to signal, signal to data. Who does this? खोला वो करने Who does this task? Physical layer does this task. Again, physical layer. So we are in the physical layer part. बेसिकली 5 लेयर हमको पढ़ना है. फर्स्ट इज फिजिकल लेयर, देन डेटा लिंक लेयर, देन नेटवर्क लेयर, देन ट्रांसपोर्ट लेयर, देन एप्लीकेशन लेयर एंड सब सर्विसेज ऑफ एप्लीकेशन लेयर. दैट इज योर सिलेबस. अगर तुम सिलेबस के थ्रू गए हो तो तुमको ये पता है कि ये यही तुम्हारा सिलेबस है. टोटल थिंग वी हैव टू कवर first this physical layer, then data link layer, then network layer, transport layer और application layer. तो जो कि TCP/IP मॉडल फॉलो करता है, ये OSI मॉडल नहीं है, but still that also dependent on some OSI model. So first you have to learn OSI model and then TCP/IP model, and we are following TCP/IP model here. So that's the thing, first thing actually you have to do, that is the digital transmission. That means signal to data as well as data to signal. Both the thing you have to perform here. That is digital transmission. So receiver end में क्या होता है, sender end में क्या होता है? Can anyone tell? रिसीवर एंड में क्या होगा? रिसीवर एंड में क्या होगा? सिग्नल टू डेटा कन्वर्ट होगा. और सेंडर एंड में क्या होगा? डेटा टू सिग्नल कन्वर्ट होगा. दिस थिंग इज क्लियर टू यू? दैट मीन्स जब मैं मीडियम के थ्रू सिग्नल जाएगा, वो क्या है, किस फॉर्मेट में जाएगा? सिग्नल फॉर्मेट में जाएगा. कभी भी डेटा किसी तरह डेटा नहीं जा सकता. So first we have to convert the data to signal in sender end, data to signal. Signal will move forward, and then again it will be reverse. That means signal to again data in receiver end. Receiver end में क्या होगा? Signal to data convert होगा. So that conversion we have to perform here now. Digital to digital conversion. First topic we have to cover, digital to digital conversion. What it means? Digital data to digital signal. That's why the name is telling digital to digital conversion. Digital to digital conversion. Please be careful. Digital data we have to convert. 1 minute, just 1 minute. Okay, is okay?
my voice is cleared again? Am I audible? Yes, sir. Okay. So digital to digital conversion we have to perform. That means it is again digitally we have to first we have to take the digital data, and then we have to convert it into digital signal. That is your our target. That means digital to digital conversion. Digital data we have to convert it into digital signal. That's why it is telling digital to digital conversion. So for that we have line coding, block coding, and scrambling. For that conversion we have some techniques, three techniques basically, that is line coding, block coding and scrambling. तो ये चीज हम लोग अभी सीखेंगे। लाइन कोडिंग क्या है, लाइन कोडिंग स्कीम्स कौन कौन सा है, ब्लॉक कोडिंग कौन सा है, एंड स्क्रैम्बलिंग इसको बोलेंगे। so that thing, this whole chapter will cover, whole chapter will cover these four things: line coding, block coding and scrambling. अभी लाइन कोडिंग, आज लाइन कोडिंग भी पूरा कंप्लीट नहीं होगा, बट स्टिल दिस टेक्निक्स एक्चुअली वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ. What is the technique? Digital to digital conversion. That means digital data we have to convert it into digital signal. Now for that first technique is called line coding. Simple it is. Line coding means there are two data, digital data we have only 0 and 1, so we have to choose two or more labels for each 0 and 1. That is called line coding. Simple this is. Converting a string 0 or 1 into a sequence of signals that denoted by 1 and 0. That means 1 के लिए एक, 0 के लिए एक, हो सकता है मल्टीपल लेवल हो, 0 1 के लिए एक, 1 0 के लिए एक, 0 0 के लिए एक, 1 1 के लिए एक, हो सकता है। इस वे से हम लोगों को एक लाइन ड्रॉ करना है। दैट मीन्स दैट सिग्नल विल ड्रॉ by seeing that only 0 and 1. That simple technique is called line coding. 1 may be represent high voltage, 0 may be represent low voltage, or reverse, or vice versa. 0 also may be represented by positive, 1 may be represented by negative. That is also possible. That means ये मेरे ऊपर है, हम किस स्कीम को लेके बना रहे हैं वो मेरे ऊपर है। 0 को मैं 1 मान के चलूंगा या 0 को लो मान के चलूंगा, 0 को मैं हाई मान के चलूंगा या 0 को लो मान के चलूंगा, दैट डिपेंड्स ऑन मी। वो मैं डिसाइड करूंगा। सो वी हैव मल्टीपल स्कीम्स, we have multiple algorithms in line coding part, but line coding means you have to give the string input and it will create some line, it will create a line of signals. That is the technique, is called line coding. Very basic code line coding is this. Now see, simple it is showing. Here is the digital data and we have to convert this digital data by seeing this, by assuming the labels of 0 and 1, by assuming some labels of 0 and 1. 0 के लिए एक अलग लेवल एज्यूम करना है, 1 के लिए एक अलग लेवल एज्यूम करना है, या 0 1 के लिए एक अलग लेवल एज्यूम करना है, दैट्स डिपेंड ऑन यू, बट दैट assuming that signal label we have to draw the digital signal. That's the simple line coding technique. So here sender end, what sender end will do, digital data will convert it into the digital signal. What receiver end will do, again signal will be converted into the digital data. Is the thing clear too? Now so mapping data symbol onto signal levels, that is simple, that's depends on you. A data symbol can consist of number of data bits, 0 and 1 or 1 1 1 0 1 1, so 2 bit per signal हो सकता है, 3 bit per signal हो सकता है, मतलब per level हो सकता है, 4 bits per level हो सकता है. That depends on me
कि मैं कौन सा मैं लेने वाला हूं, एंड उसके हिसाब से उस लेवल को मैं डिनोट करूंगा पॉजिटिव या नेगेटिव, कितना एम्पलीट्यूड में मुझे लेना है, दैट वी विल डिसाइड। that is called mapping data symbols onto signal levels। सिंबल्स को, डेटा सिंबल्स को मुझे सिग्नल लेवल में मैप करना है। सिंपल टेक्निक, मैं चूज करूंगा और उसी हिसाब से मैं करूंगा, बट बाय डिफॉल्ट यू हैव टू मैप फर्स्ट। मैं हैपाजार्ड नहीं कर सकता, एक बार 1 को मैंने हाई मान लिया और उसी सिग्नल में एक बार 1 को लो मान के कर रहा हूं, ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें चूज करना है फर्स्टली कि 0 को तुम्हें क्या मानना है, हाई मानना है या लो मानना है, 1 को क्या मानना है, हाई मानना है या लो मानना है। दैट assuming that we have to draw the signal, that thing previous firstly you have to do mapping data symbols onto signal levels. Now see relationship between data rate and signal rate, data rate and signal rate। so simply you have to understand this कि अगर सिंपली समझो, एक सेकेंड में एक बीट को एक सिग्नल लेवल मान के चल रहा हूं, एक सिंगल बीट को मैं एक सिग्नल लेवल मान के चल रहा हूं। तो मान लो एक सेकेंड में 10 तो बीट जा रहा है, एक सेकेंड में 10 तो सिग्नल लेवल जा रहा है। पहले समझ जाओ, पहले वाला चीज, एक तो बीट में एक सिंगल बीट is representing a signal level, a single signal level। That means 1 bit equals to 1 signal level, maybe high low, that's depends on that, we're not bothering। अब मैं बोल रहा हूं 10 सेकेंड में, अगर एक सेकेंड में 10 तो सिग्नल बीट्स जा रहा है, that means what is the bit rate, 10 bit, बिकॉज एक सेकेंड में 10 बीट जाएगा, बिकॉज एक सिग्नल लेवल में एक बीट में मान के चल रहा हूं। अब उसी को अगर 2 मान के चलूंगा तो बिट रेट क्या होगा, 20। एम आई क्लियर, एम आई क्लियर, एम आई क्लियर, यस नो, यस नो में जवाब दो प्लीज। हेलो, आर यू लिसनिंग? यस सर। इज दैट थिंग क्लियर, इज दैट थिंग क्लियर? मैं जो बोलने का कोशिश कर रहा हूं, एक सिग्नल बीट, एक बीट इक्वल्स टू एक सिग्नल, अगर मैं मान के चल रहा हूं एक सिंगल बीट इक्वल्स टू 1 सिग्नल लेवल, दैट मीन्स व्हाट, 10 सेकेंड में अगर एक सेकेंड में 10 तो सिग्नल लेवल जा रहा है, एक सेकेंड में 10 तो सिग्नल लेवल जा रहा है, दैट मीन्स व्हाट इज द बिट रेट, 10 बिट, बिकॉज एक सिग्नल लेवल पे एक ही बीट जा रहा है। अगर वही एक सिग्नल लेवल पे 2 बीट जाता, दैट मीन्स 0 के लिए एक, 0 के लिए एक लेवल, 1 के लिए एक लेवल, 1 के लिए एक लेवल, मैं मान के अगर सेंड कर रहा हूं, देन व्हाट, अगर 10 सिग्नल लेवल, वही 10 सिग्नल लेवल जा रहा है एक सेकेंड में, देन हाउ मेनी बीट इट विल कवर, हाउ मेनी बीट इट विल कवर, 20 बीट्स। इज द थिंग क्लियर? सो हियर नहीं समझ आ रहा है सर। अच्छा वेट सर थोड़ा दिक्कत हो रहा है, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ओके वेरी गुड। नाउ पिक्चराइज देखो, मैं मान रहा हूं सिंगल बीट इक्वल्स टू सिंगल सिग्नल। नाउ क्लियर, सिंगल बीट इक्वल्स टू सिंगल सिग्नल, दैट मींस हियर इट इज सिग्नल लेवल्स। तो इसको मैंने 0 मान लिया, 1 के लिए मैं हाई मान के चल रहा हूं, तो मैं बोल रहा हूं एक बीट इक्वल्स टू एक सिग्नल लेवल मैं मान के चल रहा हूं। थिंग इज क्लियर? अभी तक कोई प्रॉब्लम? मैं अगर ये मान के चल रहा हूं और ये भी मैंने मान लिया एक सेकेंड में 10 सिग्नल इस तरह जा रहा है, 10 सिग्नल एक सेकेंड में, यहां तक एक सेकेंड है और एक सेकेंड तक 10 सिग्नल यहां पे पहुंच रहा है। सो व्हाट इज द बिट रेट देन? What is the bit rate? बोलो, एक सेकेंड में कितना बीट गया? 10 सेकेंड, 10 बीट गया। थिंग इज क्लियर टू यू?
यस नो अभिषेक, अभी क्लियर है? यस सर। तो 1 सेकंड में 10 बीट गया, सो व्हाट इज द बीट रेट? 10 बीट पर सेकंड, 10 सर। 10 बीट पर सेकंड। नाउ उसी को मैं मान रहा हूं, अब मैं मान रहा हूं 0 1 के लिए लो और 0 1 के लिए लो और 1 0 के लिए हाई, और उस हिसाब से 4 लेवल का बना रहा हूं, 4 लेवल्स, 4 लेवल जो पिछले बार मैं पिछले एक पीपीटी में दिखाया था, 4 लेवल का एक सिग्नल क्रिएट कर रहा हूं मैं। 2 बीट है, एक सिग्नल में 2 बीट है, एक सिग्नल में 2 बीट है। नाउ यू टेल कि अगर 10 सिग्नल 1 सेकेंड में पहुंच रहा था, 1 सेकेंड में 10 सिग्नल पहुंच रहा था, देन हाउ व्हाट इज द बीट रेट? सेम एक सिग्नल लेवल में 2 बीट है, 20 बीट। श्योर दिस थिंग इज ओके? दिस थिंग इज वेरी क्लियर टू यू? थिंग इज क्लियर अभिषेक? नाउ दिस थिंग इज क्लियर? यस सर। तो अब अगर इसका मतलब क्या, बीट रेट क्या हो गया 20, बट सिग्नल रेट क्या हो गया फॉर द सेकेंड केस? सिग्नल रेट क्या हो गया फॉर द सेकेंड केस? सिग्नल 10 ही होगा। 10 ही होगा, सिग्नल रेट 10 ही होगा, बिकॉज 10 सिग्नल्स जा रहा है, 1 सेकेंड में 10 सिग्नल्स ही पहुंच रहा है। सो व्हाट इज द बीट रेट फॉर द सेकेंड केस? फॉर द फर्स्ट केस बीट रेट इक्वल्स बीट रेट भी 10 और सिग्नल रेट भी 10। दिस थिंग इज क्लियर टू यू, यस और नो? और फॉर द सेकेंड केस 2 बीट पर सेकेंड में एक सिग्नल लेवल में मान रहा था, तो क्या हो जा रहा था? बीट रेट क्या हो गया 20 और सिग्नल रेट क्या हो गया 10। थिंग इज क्लियर टू यू? थिंग इज क्लियर टू यू? उसी तरह अगर मैं 3 बीट पर सिग्नल मान के चल रहा हूं, 3 बीट पर सिग्नल, देन व्हाट इज द बीट रेट? 10 ही मान के चलो। व्हाट इज द बीट रेट? 30। और व्हाट इज द सिग्नल रेट? 10। 10. Thing is clear? Thing is very clear to you? Yes or no? Yes, sir. Thing is very clear to you? अब इस चीज को यहां पे वही चीज मेंशन किया हुआ है, see the thing, see the thing here, data rate and signal rate, data rate and signal rate. Can you clear now? Clear relationship between signal data rate and signal rate? Thing is clear to you? समझा पाया? Data rate defines the number of bits sent in per second. This is bit rate. But signal rate, generally it is called baud rate. सिग्नल रेट को रेट का ही एक और नाम है, एक और नेम से भी पुकारा जाता है, दैट इज कॉल्ड baud rate. BAUD, bauds. See, baud rate. So whenever baud rate, this word comes, baud rate, bit rate and baud rate. Bit rate means how many beats per second. Baud rate means how many signal per second. Thing is clear to you? Yes, no? जवाब चाहिए। Yes, sir. Very clear to you this much? Bit Yes, rate sir. and baud rate. Bit rate and baud rate. And what is the relation? ये रिलेशन क्या होगा? डिपेंड करेगा बीट पे, हाउ मेनी बिट्स वी आर टेकिंग पर सिग्नल, हाउ मेनी बिट्स वी आर टेकिंग पर सिग्नल, कितना बीट हम एक सिग्नल में मैं ले रहा हूं, इसके ऊपर ये दोनों का रिलेशन डिपेंड करेगा। थिंग इज वेरी क्लियर टू यू? यस, नो? नेक्स्ट वही चीज दिखाया हुआ है यहाँ पे, सी 1 बीट पर सिग्नल R equals to 1. 2 levels per bit. See, 2 levels per bit.
एक बीट में 2 लेवल मान के चल रहा है यहाँ पे, पॉसिबल इन लाइन कोडिंग। सम ऑफ द लाइन कोडिंग यूजेस दैट, सम ऑफ द लाइन कोडिंग यूजेस दैट कि एक बिट पे ही 2 लेवल्स। ये देखो 1 मान रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, 0 मान रहा है दूसरा, तो यहाँ पे दोनों सेम कर दिया है। बट ओके, एक बिट में 2 सिग्नल्स, 2 सिग्नल्स अगर मैं मान के चल रहा हूं, देन r इक्वल्स टू 1/2। दिस थिंग इज ओके विद यू? r इक्वल्स टू 1/2, दैट मीन्स 1 बिट पे 2 सिग्नल। 1/2 का मतलब 1 बिट पे 2 सिग्नल्स, 1 बिट पे 2 सिग्नल्स, 1 बिट पे 1 सिग्नल, दैट इज r by 1। r equals to 2, when r equals to 2, that means 2 bit पे 1 signal। is the thing clear? when r equals to 2, that means r एक चीज है जो r का मतलब ये है, that is the relation, that is the relation r, relationship between data rate and signal rate, that is the relation r। when r equals to 2, that means you have to understand that 2 का मतलब 2 बिट पे एक सिग्नल क्रिएट होगा। when r equals to 4/3, that means क्या 4 बिट पे एक सिग्नल क्रिएट होगा। this thing is clear or not? 4 बिट पे 3 सिग्नल क्रिएट होगा, clear or not? very clear or not? सर आर को क्या बोलते हैं? r is relation between data rate and baud rate, रिलेशनशिप बिटवीन डेटा रेट एंड baud रेट मतलब सिग्नल रेट। आर को ही बोलेंगे रिलेशन बिटवीन डेटा रेट, दैट इज आर, डिनोटेड बाय आर। दिस इज रेशियो ऑफ बिट पर सिग्नल, बिट पर सिग्नल। थिंग इज क्लियर टू यू? थिंग इज क्लियर टू यू? यस, नो? क्लियर है? बोलो, आगे बढ़े, आगे बढ़े। नहीं होगा तो फिर से मैं समझाता हूं। बोलो बोलो बोलो, आगे बढ़े या फिर से रिकैप करें? बताओ सर फिर से एक बार सर। कौन सा, कहां से कहां तक बताओ। ये बीट रेट baud रेट समझ में आया था? यही वाला टिप्स। बीट रेट baud रेट समझ यस में आया वो था? समझ में आ गया था सर। ये यहाँ पे देखो सिंपली Yes, sir. अच्छे से समझो। when r equals to 1, r is ratio देखो 1 डेटा एलिमेंट पर 1 सिग्नल। when r equals to 1, that means 1/1, that means 1 bit per signal, 1 bit per signal, this is r, 1 bit per signal। here 1 bit per 2 signal, that's why r 1/2, 1 bit equals to 2 signal। एक बिट पे रिप्रेजेंट हो रहा है 2 सिग्नल, एक बिट पे 2 सिग्नल रिप्रेजेंट हो रहा है। एक ही बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 सिग्नल क्रिएट हो रहा है, 2 सिग्नल लेवल क्रिएट हो रहा है। दैट मींस हर 2 सिग्नल पे एक बिट पकड़ा जाएगा, हर 2 सिग्नल पे एक बिट पकड़ा जाएगा। बिकॉज देखो ये चीज हमेशा ध्यान में रखो, रिसीवर एंड में सिग्नल में कन्वर्ट हो रहा है, सॉरी सेंडर एंड में क्या हो रहा है, डेटा टू सिग्नल कन्वर्ट कर रहा है। तो एक बिट उसके पास होगा, इट विल क्रिएट 2 लेवल्स, when r equals to 1/2। थिंग इज क्लियर टू यू नाउ? और रिसीवर एंड में क्या जब करेगा, रिसीवर एंड इसी को समझेगा, आर को ही पकड़ के रिसीवर एंड भी करेगा। आर रिसीवर एंड पे पहुंच गया। अब रिसीवर एंड क्या करेगा, ओके r equals to 1/2, so that means it will count 2 levels and make according to the bit, it will convert it into the bit। 2 लेवल को लेगा और उसी हिसाब से एक बिट बनाएगा,
2 लेवल फिर काउंट किया, उसके हिसाब से एक बिट क्रिएट करेगा, 2 लेवल फिर लिया, उसके बाद ये काउंट करेगा, 2 लेवल फिर लिया, फिर उसके बाद एक डेटा पे काउंट करेगा। सो दैट कन्वर्जन होगा, ये जो कन्वर्जन होगा, ये कन्वर्जन इस आर पे डिपेंडेंट है। इज दैट थिंग क्लियर? इज दैट थिंग क्लियर? यस, नो? Yes, sir. Is the thing clear? Very clear. Now here, see, here also r equals to 2, that means क्या, 2 बिट पे एक सिग्नल क्रिएट होगा, 2 बिट पे एक सिग्नल लेवल क्रिएट होगा, हर 2 बिट पे एक सिग्नल लेवल क्रिएट होगा, that is 2। r equals to 2 का मतलब ये है। When r equals to 4/3, what it means? Now you tell what it means. 4 बिट Sir, पे it means 4 bit पे 3 सिग्नल। 3 सिग्नल होगा, राइट? तो when जब भी ये देखो सिंपल, जब कन्वर्ट हो रहा है, जब एक सिंपली अच्छा से समझने की कोशिश करो, जब बीट टू सिग्नल कन्वर्ट हो रहा है, बीट टू सिग्नल कन्वर्ट हो रहा है, एट दैट टाइम इट विल सी ओके 4/3, दैट मींस 4 बिट को लेना है, और अकॉर्डिंग टू दैट कौन सा बिट मुझे मिल रहा है, वो लेवल्स तुम्हें इसके बाद, जस्ट इसके बाद आने वाला है। तो अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सिग्नल्स, कि हाँ 4 बिट पे अगर 1101 है, तो ये इसके हिसाब से मुझे 3 लेवल क्रिएट करना है। दैट हैव सम स्पेशल एल्गोरिथम, उसके लिए स्पेशल एल्गोरिथम है कि कैसे ये लेवल ले रहा है, बट तुम्हें 4 बिट पे 3 लेवल क्रिएट करना है, हर 4 बिट पे 3 लेवल क्रिएट कर लेना है। दिस थिंग इज क्लियर टू यू नाउ? तो दैट डिपेंड्स ऑन आर दोनों तरफ होगा, सेंडर एंड में भी होगा, रिसीवर एंड में भी होगा। सेंडर एंड 4 बिट को लेके 3 सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, और रिसीवर एंड क्या करेगा, हर 3 लेवल लाएगा और उस लेवल के हिसाब से बिट पे कन्वर्ट करेगा। थिंग इज क्लियर टू यू? थिंग इज वेरी क्लियर टू यू, यस और नॉट? बोलो हाँ ना, आगे चले। नाउ दिस थिंग इज क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट, लाइन कोडिंग किस हिसाब से होता है, क्यों मुझे इस तरह चेंज करना है? सिंपली ये जो मैं बोल रहा हूं, ये इतने तरीके का एक एल्गोरिदम क्यों चाहिए मुझे? मैं एक ही तरीके का एल्गोरिदम पकड़ के भेज सकता था, इतना तरीके का एल्गोरिदम क्यों चाहिए मुझे? The reason is here, it is here is the reason. Mainly क्या प्रॉब्लम होता है, जब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर सेम सिग्नल लेवल जाएगा, दैट मीन्स अगर मैं इसके पहले वाला मान के चल रहा हूं, दैट मीन्स here मान लो 1 के लिए लो मान के चल रहा है, 0 के लिए हाई मान के चल रहा है। अब मान लो कोई डेटा में 1 1 1 1 1 1 5 है, 5 to 1, उसके बाद 0 0 0 0 10 to 0 है, ये मेरा डेटा है। तो क्या होगा, हाई लेवल, फिर 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 हाई लेवल, 5 तो फिर हाई लेवल, फिर 10 तो लो लेवल, एकदम 1 2 3 4 5, नो चेंज इन लेवल, बिकॉज ऑल आर जीरोस। अगर कंटिन्यूअस ये चलेगा, अगर कंटिन्यूअस ये चलते रहेगा, दैट मींस अगर 1000 टाइम्स 0 है कोई एक डेटा में, तो उस डेटा को क्या करना होगा लाइन कोडिंग में क्या प्रॉब्लम होगा, 0 0 0 0 0, ये लाइन एक ही लाइन पे चलते रहेगा वो। व्हाट इट मींस फॉर एनी इलेक्ट्रॉनिक्स वाला ज्यादा अच्छा बोल पाओगे। व्हाट इट मींस, ये सिग्नल अगर कंटिन्यूअस एक ही लेवल पे अगर कंटिन्यूअसली चलते रहेगा, व्हाट इट मींस, इसका मतलब क्या है? वेरी लो फ्रीक्वेंसी, वेरी लो फ्रीक्वेंसी, स्टैटिक, दैट इज फ्रीक्वेंसी इज वेरी लो, फ्रीक्वेंसी एकदम कम,
जीरो फ्रीक्वेंसी उसको मान के चलेगा। तो जब भी जीरो फ्रीक्वेंसी होगा तो डेफिनेटली सिग्नल फेल्स, signal fails. Zero frequency, there is an increase of there is an increase of low frequencies in the signal when the voltage level remains constant for a long period of time. क्या समझ में आया? ये लाइन कॉन्स्टेंटली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एक लेवल में जा रहा है सिग्नल, 0 सिग्नल लेवल वैसे ही चल रहा है, नो चेंज इन सिग्नल लेवल। तो क्या होगा? ये जीरो फ्रीक्वेंसी मान के चलेगा, और जीरो फ्रीक्वेंसी जैसे ही हो गया, most channels are band pass and may not support the low frequencies. So low frequency का मतलब ये होगा कि कभी भी वो सिग्नल को वो ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, that is very low frequency मान के चलेगा। So that's the problem. So that's why हमें क्या करना है, हमें करना इतना, ये मेरा एम होना चाहिए, ये फ्लैक्चुएशन हो, लेवल पे फ्लैक्चुएशन हो। That's why इतने तरीके का लाइन कोडिंग आया, इतने तरीके से लोग लाइन कोडिंग आया। और एक प्रॉब्लम होता है, दिस इज डीसी कंपोनेंट है, और एक प्रॉब्लम होता है सेल्फ सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम। सी हियर, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, लाइन कोडिंग में ये प्रॉब्लम फिर से क्रिएट होता है। दैट्स व्हाई हम लोग को लेट्स टेक, इफ रिसीवर क्लॉक इज फास्टर और स्लोअर, receiver clock is faster or slower than sender clock, then what happens? It can misinterpret the incoming bit stream. कैसे समझने की कोशिश करो। Here it is, तुमने ये भेजा है, तुमने ये डेटा भेजा है टाइम पे, और रिसीवर एंड थोड़ा सा स्लाइड छोटा 1 लेके मान रहा है। देखो थोड़ा सा ये स्लोअर है, रिसीवर एंड में थोड़ा सा स्लोअर है, ये थोड़ा स्लोअर है, ये थोड़ा फास्टर है, देखो ड्यूरेशन थोड़ा जल्दी ये कर रहा है, ड्यूरेशन को ले रहा है। सो देन व्हाट हैपेंस, ये मैंने भेजा था, ये ही पहुंचा है, लेकिन इट कैन मिस इंटरप्रेट द 0-1 because of this time synchronization. See, अगर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम 1-0-0-0-0 होगा तो तुम्हें सिंपली क्या हो जाएगा, यहां पे बोलो तो, कि अगर 4 0 की जगह 5 0 ले लेगा वो, because of this synchronization. Is the thing very clear to you? Yes, sir. So that thing, इसके चलते हम लोगों को जितना ज्यादा हम लोग फ्लैक्चुएट कर सकते हैं वो हम लोगों के लिए बेटर है। सो मुझे इसीलिए सेम लेवल पे हमको रखना नहीं है, फ्लैक्चुएटिंग स्कीम ज्यादा बेटर है। एंड यही वजह है, ये दो प्रॉब्लम के चलते हमें इतने तरीके का लाइन कोडिंग लाना पड़ा। थिंग इज क्लियर टू यू? यस और नो बोलोगे, जवाब दोगे। वेरी क्लियर दिस मच कि लाइन कोडिंग इसलिए एक नहीं, सिंगल स्कीम नहीं, बहुत सारे स्कीम आया है, 1 by 1 बहुत सारे स्कीम आया है मार्केट में, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम अराइजेस। ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा अराइज होता है, सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम एंड डीसी प्रॉब्लम, डीसी कंपोनेंट। सो दैट टू प्रॉब्लम्स एक्चुअली deals many type of recipient. Now see the examples. In digital transmission, the receiver clock is 0.1% faster than sender clock. That means it is faster. How many extra bit per second receiver will receive when data rate is 1 kbps? 0.1% faster. 0.1% faster. Please be careful. 0.1. That means हर 1000 बिट पे एक बिट एक्स्ट्रा रिसीव होगा। Yes, no? Clear this much? 0.1% is not 1%.
1% होता तो 100 बिट पे एक बिट ज्यादा जाता, बट 0.1%, दैट मीन्स इट इज परसेंट, so that's why it is 1000 बिट पे एक बिट एक्स्ट्रा होगा. yes, clear or not? 1% का मतलब क्या है? 100 पे एक. 0.1% मतलब 1000 पे एक. तो अगर 1000 बिट पे एक बिट एक्स्ट्रा बिट रिसीव हो रहा है, yes or not? clear this much? Yes, sir. So now you can calculate 1 kbps है तो कितना बिट एक्स्ट्रा जाएगा. So 1000 kbps तुम सेंड कर रहे हो, ये पहुंच रहा है 1000 एक्स्ट्रा बिट. दैट मींस दिस बिट्स it will receive. So that means wrongly it will interpret, wrongly it will treat that data. So that's the problem actually arises when self synchronization is less. Self synchronization problem is less. So now we have to go to the several schemes, line coding schemes. 3 basically we will study now: unipolar, polar.